جیسے پہلے ہوتا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو بنایا کرتے تھے، اب بدقسمتی سے، دربھاگیہ سے سارے ملک میں میڈیا کے ذریعے سے یہ پھیلا دیا گیا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہیں باہر سے چائنا سے آ کے لوگ بیٹھے تھے یہاں اور آ کر کے انہوں نے وقف بورڈ بنا رکھے تھے اور قبضے کر لیے. سمجھ لیں وہی پارٹی جو آج یہ کہہ رہی ہے کہ قبضے کرتے تھے، وہی پارٹی 2009 میں یہ کہا کرتی تھی کہ ان کی زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں اور ہم ان کے چھڑوانے میں رول پلے کریں گے. 2009 سے آج تک میں اتنی چینجنگ آ گئی کہ 2009 تک جو کمیونٹی مظلوم تھی وقت کے معاملے کو لے کر، وہی کمیونٹی ظالم ہو گئی کہ انہوں نے یہ گرفت کر لیا، یہ گرفت کر لیا، یہ گرفت کر لیا اور یہ گرفت کر لیا. تو معاملہ وقف کا نہیں ہے، معاملہ پولیٹکس کا ہے. مسلمانوں کے نام پر، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے لیے کبھی ہمدرد بن کے اور کبھی گالی دے کے، ہمدردی کے پیچھے بھی گالی ہی چھپی ہوئی ہے. اس ایکٹ کو دربھاگیہ کے ساتھ، دربھاونا کے ساتھ، دربھاونا پورن ایکٹ ہے یہ امینڈمنٹ ہے. یہ سوسائٹی کے لیے، کمیونٹی کے لیے یا ملک کے لیے، مان لو سوسائٹی کے لیے، مسلمانوں کے لیے خراب ہوتا، ملک کے لیے اچھا ہوتا تو بھی ہمارے سر آنکھوں پہ ہو سکتا تھا. ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا تکلیف ہوگی، برداشت کر لیں گے، کوئی بات نہیں، دیش کا بھلا ہو جائے. نہ دیش کے لیے، نہ کامن سوسائٹی کے لیے، انڈینس کے لیے، اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے، کسی کے لیے یہ قانون صحیح نہیں ہے اور اس طرح کی امینڈمنٹ صحیح نہیں ہے. اسٹرینتھن کرنے کی بات کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی چیز تھی کہ قبضہ کرنے والے کے خلاف، جیسے کہتے ہیں یہ قبضہ کر رکھا، ہم لوگوں نے بھی قبضہ کر رکھا، قبضہ کرنے والے کے خلاف کرمنل کیس بنے گا. آپ نے اس امینڈمنٹ میں اس کرمنل ہونے کو، کرمنلٹی کو ختم کر دیا. تو کیسے فائدہ پہنچایا آپ نے؟ آپ تو قبضہ کرنے والوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، بلڈروں کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ جو پرائم لوکیشن کی لینڈز ہیں وہ بلڈرز کو مل جائے. ہم نے، ہمارے پورکھوں نے، بڑوں نے یہ فیصلہ کیا ہم اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک میں ہی رہیں گے، اور اس کے خلاف اس کو لے کر لڑائی لڑی ایک لمبی، اپنی کمیونٹی کے ان لوگوں سے جو تھوڑے سے تھے سنکھیا میں اور جن کے سپورٹ میں یہ لوگ کھڑے تھے اس وقت بھی. ہم نے ان سے لڑائی لڑی اور ہم سے اس دیش کے فاؤنڈرز نے، اس کنٹری کے فاؤنڈرز نے، آزاد بھارت کے کچھ کمٹمنٹس کیے تھے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میجورٹیرین اپروچ کے ساتھ ان کمٹمنٹس کو اور اس ملک کی بنیاد رکھنے والے لوگوں کو روندا جانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس تکلیف کا اظہار، معلوم ہے مجھے کہ میرے یہ شبد، میرے یہ احساس، میری کمیونٹی کی یہ فیلنگ بہرے کانوں سے سنی جائے گی، مجھے معلوم ہے وہ دل تک نہیں جائے گی، کیونکہ وہ ایک خاص سوچ بنا لی گئی ہے اور اس سوچ کے تحت ایکشنز لیے جا رہے ہیں. وہ آدمیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، انسانوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھینس کے آگے بین بجاؤ، بھینس کھڑی پگرائے، ہمارے ہاں کہاوت مشہور ہے ہندی کی. تو سدا بسہرا ثابت ہوگی، لیکن میری ایک ذمہ داری ہے اس ملک کے، ہمارے اس دیش کے ایسے ناگرک ہونے کے واسطے سے، وجہ سے ہماری ایک ذمہ داری آئی ہے، ایک رسپانسبلٹی ہمارے اوپر آئی ہے کہ ہم غریب کچلے
ایسے لوگوں کو جنہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا، جنہیں روندنے کی تیاری کر لی گئی اور روندا جا رہا ہے، ان کی طرف سے دل کی تکلیف کا اظہار کر سکوں، تو بس سوالوں کے جواب نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ جو سوال ہیں ان سوالوں کو سنتا ہوں میں تو مجھے سمجھ آتا، سوچتا ہوں یہ ان لوگوں کے پاس سے شرم نام کی چیز ختم ہو گئی، ایک دم شیم لیس ہو گئے سوال کرنے والوں کے بارے میں سوچتا ہوں جس طرح کے سوال آتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کروں گا آپ لوگوں کا اس بات کے لیے، لڑائی جاری رہے گی، ختم نہیں ہوگی، اور جو قربانی دینی پڑے پہلے بھی دی گئی ہے، آزادی سے پہلے بھی قربانیاں دی، اگر لڑنا پڑے گا لڑیں گے، صبر کرنا پڑے گا صبر بھی کریں گے، اور کر رہے ہیں نہایت صبر کے ساتھ۔ پوری کمیونٹی نیائے کے انتظار میں، اور یہ بھی کہہ دوں میں آپ کو کہ اس دیش کے لوگ خوبصورت ملک ہے، لوگ ایسے نہیں ہیں، کچھ ہیں جو یہ سب اس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، تو ہم اکیلے نہیں ہیں اس میں، یہ بھی یقین ہے۔ آپ میں سے ہی بہت سارے لوگوں کا ہم کو بھی ساتھ ملے گا، ملک کا ساتھ ملے گا، بدلے گا وقت، صبح بھی ہوگی، ہمیشہ تو رات نہیں رہے گی، وقت کروٹ لے گا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ بات مولانا فاروقی صاحب جو لیگل معاملہ ہے اس حوالے سے کچھ پوائنٹس کا تذکرہ کریں گے، اور مولانا حکیم الدین صاحب بھی کچھ بات کہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ نہیں ابھی نہیں، بات پوری ہو جائے۔ بات کیا کریں، سوال کریں آپ کے لگے ہوئے، اس لیے چلیے، ریزولوشن میں کیا کیا چیزیں فیصلہ کرو، آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ریزولوشن ریزولوشن کا ایک بنیادی مدعا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں سے یہ اپیل کری ہے کہ پیسفل احتجاج، پروٹیسٹ، اس کے حق کا ہر حال میں لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس ایکٹ کے خلاف ہر لیول پر، ہر جگہ پہ پروٹیسٹ ہونے چاہیے۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے، چاہا گیا ہے، دوسرا یہ کہ اس کی بہت مذمت کی گئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی وائلنس ہوگا، اس ایکٹ کے نام پر ہو یا کسی نام پر ہو، وہ وائلنس تحریک کو کمزور کرے گا، اور وائلنس کسی بھی مسئلے کا حل کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو کچھ بھی ہونا چاہیے پیسفل ہونا چاہیے، اور جہاں وائلنس ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں شدت کے ساتھ۔ مولانا آپ نے کہا کہ مرشد آباد کی بات کر رہے ہیں، سبھی جگہ کی بات کر رہے ہیں، کہیں بھی اگر ہو تو غلط ہے۔ لیکن آپ نے کہا صبر ایک حد تک ہی ہے، مطلب نہیں، ٹوٹے گا، پیمانہ بھی ٹوٹے گا، نہیں، یہ بات شام کے بعد سحر بھی ایک ہے۔ سحر آئے گی، سحر آئے گی۔ اس کا کیا تعبیر ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ آج اگر لوگ خاموش ہیں تو کل کو لوگ خاموش نہیں رہیں گے، ہمیں معلوم ہے۔ آج اگر آپ خاموش ہیں تو کل آپ خاموش نہیں رہیں گے، آپ کروٹ لیں گے تو زمانہ کروٹ لیں گے۔ میڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کچھ پلان کیا گیا ہے؟ دیکھیں، پروٹیسٹ کا کہاں جمعیت علماء کا مین رول، ہسٹوریکل رول ہے ہمارا، کہ کوئی بھی کرائسس کے ٹائم میں جب ملک کے سامنے کوئی بڑا سوال آتا ہے تو ملک کے لوگوں کو کی صحیح رہنمائی کرنا، خاص طور سے نوجوان جو طبقہ ہے ان کو صحیح راستے پر رکھنا، یہ ہماری
बुनियादी जिम्मेदारी है। अभी ये वक्फ का मसला हुआ तो एक तो वक्फ के बारे में सवालात है, लेकिन इसके अंदर 2-3 बातें ऐसी पैदा हुई कि जिसने बहुत इस वक्फ से बड़े मसाइल खड़े कर दिए। जिस तरीके से कि वक्फ के सिलसिले में एहतजाज करने वालों को कुचला जा रहा है और उनकी जुबान बंद की जा रही है सिर्फ काली पट्टी लगाने पर जो कुछ हो रहा है, ऐसे में सवाल अब सिर्फ वक्फ का नहीं रह गया, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का सवाल पैदा हो गया। आपको मालूम है कि इमरजेंसी में क्या हुआ था? सबसे पहले हमारे जुबान पे पाबंदी लगाई गई थी। उससे बड़ा इस वक्त सवाल है कि किस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर दहशत फैलाई जा रही है। ऐसे में हमारे लोग जो रिएक्ट करेंगे तो ये जरूरी है कि हम उनकी सही रहनुमाई करें। तो इसको इस मुल्क के जो अवाम है, इतनी बड़ी तादाद है, उनको आप लाठी और डंडे के जरिए दबा नहीं सकते। ये कभी नहीं हुआ है और ना आइंदा होगा। तो हम इसको अपना फर्ज समझते हैं कि हम सही लोगों की सही रहनुमाई करें। तो एहतजाज तो होगा चाहे हुकूमत कुछ भी करे, एक तो पहली बात यह है। लेकिन इस एहतजाज के करने का तरीका क्या होगा, ये भी हमें अपने लोगों को क्लियर होना चाहिए। कैसे भी हालात हों, कितनी भी गोली चले, कुछ भी हो, तशद्दुद का रास्ता हमारे लिए नहीं है। ये गांधी जी की तहरीक नहीं, वैसे इस्लाम इजाजत नहीं देता, इस्लाम इजाजत नहीं देता, कभी नहीं इजाजत देता। तो दोनों ही बातें हैं कि हम एहतजाज से हमको रोका नहीं जा सकता, और दूसरे ये कि हम एहतजाज में न तशद्दुद करेंगे न तशद्दुद होने देंगे। तो आज की जो ये मीटिंग हुई है वो उसका बुनियादी जो है फोकस है वो इस बात पर है। दूसरे ये कि जो वक्फ के बोर्ड के सिलसिले में और वक्फ के कानून के सिलसिले में ये सरकार जो है अंधाधुंध आंखों में धूल झोंक रही है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बाकायदा आप देख रहे हैं होम मिनिस्टर साहब से लेकर के और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से लेकर के और आरएसएस और दूसरी तंजीमों को लेकर के, थोड़ा सा आप लीगल बता दीजिए, थोड़ा सा पॉइंट्स। तो वो कुछ गुमराही को एक चीज हम ये भी बताना चाहते हैं कि इसमें बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो अदालत में गई हैं और हम भी अदालत के अंदर पार्टी हैं, और हमारा फोकस इस बात पे है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल है ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे दस्तूर के बुनियादी जो उसकी रूह है, उसकी जो वैल्यूज हैं उसके उनका सवाल है। तो ये आप देखेंगे कि कौन कौन से दस्तूरी पॉइंट हैं जो हमने अपने अदालत के सामने पेश किए हैं, उसका कुछ खुलासा हमने इसके अंदर दिया है। तो आप लोगों को उस सब हिंदी अंग्रेजी उर्दू सब में उसकी कॉपी दी जाएगी। यही बात मुझे अर्ज करनी थी, बाकी और मौलाना महमूद साहब, ये मामला 19 तारीख को मौलाना महमूद साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 19 तारीख को दारुसलाम में हैदराबाद में कहा है कि वो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की क़यादत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में मीटिंग करने जा रहे हैं। अब आपके यहाँ भी हुआ तो अलग अलग ये इंफरादी तौर पर सब करेंगे, इज्तिमाई तौर पर, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर अम्ब्रेला आप लोग कोई तहरीक का आगाज करेंगे या ये अलग अलग? ये जहां जहां जिसको जो मौका मिलेगा करेगा और करना चाहिए। सबको अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी जरूरत, मौके के हिसाब से ताकत लगानी चाहिए। तो वो ठीक है, सब यहाँ जिसको जहाँ जो मौका मिले उसको करना चाहिए। प्लान कर रहे हैं क्या सर, कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे? जी हाँ, कुछ कर रहे हैं। का ने यही कहा कि ये वक्त हमने एक्ट लाया है या अपीलमेंट का दरवाजा बंद कर दिया, इस पर आप तरह का रद्दमल रहा है। तो अभी तो मैं सारी बातें इतनी सारी कह चुका हूँ, वो सब इसी के जवाब में, इसी बात के जवाब में कहा है मैंने कि जो बातें वो सब कह रहे हैं वो हम तो आज भी इस पहले वाले एक्ट को भी हम चाहते थे कि और अच्छा होना चाहिए। गलत इतना वो उतना यूजफुल नहीं था जो कब्जे हो रहे हैं उनको हटाने के लिए। तो अपीजमेंट अब तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, जैसा कि मैंने कहा। जमीयत लगातार ये कहता रहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो। 2 घटनाएं हमने देखी, मुजफ्फरनगर में गया कवर करने, वहां 300 लोगों को पट्टी बांधने पर नोटिस दी। लेकिन उसके विपरीत मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में ऐसी घटना हुई है कि लोग वहां मारे जा रहे हैं, प्रदर्शन रुक नहीं रहा है, हिंसा 2 समुदायों के बीच फैल गई है, असर तो नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं लोग तो शामिल हैं कि वक्त के नाम पर शुरू होता और हिंसा देखिए कि आज एक पूरा जिला जल रहा है। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से अब ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको होम मिनिस्टर से करना चाहिए।
देश के होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए, क्यों मुर्शिदाबाद जल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। मुसलमान को, इसके लिए भी मुसलमान को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे आप। मंत्री साहब, आपसे सवाल मेरा ये है कि आपने खुद कहा कि हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं है ये वक्फ का बिल, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं पूरे देश के लिए खतरनाक है। आप एक बार अगर इसे एलिब्रेट करके बता दें कि कैसे ये देश के लिए और समाज के लिए खतरनाक है, तो बताइए। मैंने बहुत सारी मिसाल दी हैं और उसमें मौजूद है जो आपको पर्चा दिया गया है। तो ये तो फैक्ट है कि ये सबके लिए नुकसानदेह है और किसी के फायदे के लिए नहीं किया गया है। ये किसी के फायदे के लिए नहीं किया गया है, ना मुसलमानों के फायदे के लिए, ना कॉमन सिटीजन्स के फायदे के लिए, ना देश के फायदे के लिए, किसी के फायदे के लिए नहीं। लेकिन मौलाना बहुत सारे मुसलमान हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सही है बिल, बहुत अच्छा आया, अलग अलग तंजीमों के भाई लोग जो इसको समझ रहे हैं, आपके नजर में वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो मुबारक हो आपको भी और उनको भी। शुक्रिया बहुत, मुझे नहीं, मैं उनको थैंक कह रहा यू। हूँ कि वो अच्छा कह रहे हैं मीडिया पे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, मुबारक हो उनको। लेकिन मंत्री साहब, आप किसी कह को रहे अच्छा हैं लग रहा है तो उन्हें मुबारक हो। आप कह रहे हैं कि एतजाज नहीं होना चाहिए, किसी तरह का हिंसा नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद के अंदर जहाँ पे हिंसा हुई है, वहाँ पे कई दुकानों में बाकायदा वो पेपर्स जो कि एंटी वक्फ लॉ के अंदर जो है वो दिए गए, वो मिले हैं। तो जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हिंसक हो रहा है, हर जगह पर अब हिंसा फैल रही है। आपको नहीं लग रहा इसको लेकर भी आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट हिंसक हो रहा है, तो प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा है ये तो बता दीजिए, हो कहाँ रहा है प्रोटेस्ट। जब ये मामला कोर्ट में था तो आप लोग थोड़ा और देर रुक नहीं सकते थे, इतने जल्दी इस बात से रिएक्ट। कैसी बात आप कर रही हैं? रुकना, जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। मंत्री साहब, कोई रूपरेखा कार्यक्रमों की आगे तैयार की है क्या? कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे? सुनिए, ठीक है, वो वक्त आएगा, जब वक्त आएगा तब बताएंगे। एक सवाल सामने डीजे बजाने के बाद ये मामला जो प्रोटेस्ट का है, जो भी चीजें हो रही है, ये ऐसा हो जा रहा है मंत्री साहब जैसे ये कई जगहों पर के हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया जा रहा, कई जगहों पर इस तरह की चीजें हो रही है। इसको लेकर आप क्या लोगों को समझाएंगे कि ये हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों का एक इशू है, उस पर? ठीक है, वो तो कौन बात है, तो पहले से कह रहे हैं कि हिंदुओं से इसका कोई मामले का लेना देना नहीं है, न इंडिया के आम लोगों से लेना देना है। मुसलमानों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक इशू है, उस इशू को गलत तरीके से डील किया जा रहा है, गलत तरीके से ज़बरदस्ती करके कानून बनाए जा रही है, मेजोरिटेरियन अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। तो अब और क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। अमित शाह ने न्यूज 18 के राइजिंग भारत प्रोग्राम में सफाई दी और कहा कि हमने व्यवस्था के लिए किया है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में मैं पूछना चाहता हूँ, व्यवस्था ये होती है कि जिसने कब्जा कर रखा है उसको सजा हो या सजा कम, उसकी सजा से उसको बेनियाज कर दिया जाए, ये व्यवस्था हो रही है। और कितने सारे सवाल है, मैं वो सारे सवालों के उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये तो वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, झूठ बोल रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। खुद बताइए कि अगर वक्फ की जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है और उसके लिए एक्ट में प्रोविजन था, आपने उसको खत्म कर दिया। अगर मैंने भी कब्जा कर रखा है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, आपके कुछ साथी बंधु लोग कह रहे हैं कि इनको इसलिए तकलीफ हो रही है, तो मैं पूछता हूं, मुझे सजा का पात्र होना चाहिए या सजा से बेनियाज कर देना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए ना मुझे, तो सजा का प्रोविजन तो आपने खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है और आपको सबको यकीन आ रहा है, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। आंखों में पट्टी बांध लीजिए, मुसलमान रो रहे हैं इसलिए बहुत ही अच्छी चीज कर दी है इन्होंने। सर, एंटी वक्फ प्रोटेस्ट में परसों लखनऊ में जब हमास और हिजबुल्लाह के पोस्टर्स दिखते हैं, तो क्या जमात उसका कुछ कॉग्निजेंस ले रहा है, इस बात को सपोर्ट करता है? नसरुल्लाह के पोस्टर्स आते हैं, इस्माइल हानिया के पोस्टर्स आते हैं। देखिए एक बात आपको बताऊं मैं, आप ये डीरेल करना चाह रहे हैं एसपीसी को। नहीं, हम इस नहीं हम कुछ नहीं, बिल्कुल हम प्रोटेस्ट के हक में हैं। आप प्रोटेस्ट के, आपके थ्रू माध्यम से देश के नेताओं तक, शुभ चिंतकों तक, सिंसियर लोगों तक, बुद्धिजीवियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा दम घुट रहा है, आप हमारा दम मत हमें काम करने दीजिए। जो लोग परमिशन मांग रहे हैं उनको परमिशन दीजिए,
काम को ठीक तरीके से प्रोटेस्ट हो जाए। पोस्टर लगाए थे जिनकी आप वो बातें कर रहे हैं, दूसरी बहुत सारी बातें हैं जो कहकर मैं शेमफुल एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहता हूं। ये सवाल जिस तरह से खड़े किए जाते हैं, मैं उसको पहले कह चुका हूं कि ये बहुत शेमफुल है जिस तरह से सवाल खड़े किए जाते हैं। तो मुझे आप हिजबुल्लाह और हमास की तरफ आप डायलूट मत कीजिए। हम जब रिपोर्ट करने जाते हैं, हम रिपोर्ट इसी बारे में करने जाते हैं। आप करिए, शौक से करिए, बहुत शौक से करिए। आप जो कर सकते हैं वो करिए। आप मुबारक हो आपको। का जो मुतालबा हो रहा है जोरदार बढ़ता चला जा रहा है, कहीं इसको डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं लाया गया है? आपका कंडीशन देखते ही वक्त पर ठीक है, बहुत सारे डाइवर्जन है, बहुत सारी बातें हैं। उत्तर प्रदेश में जब काली पट्टी बांधी विरोध करूँ तो रुकत में हो गई, तो क्या उत्तर प्रदेश में आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं या फिर कार्रवाई में थोड़ा सा पीछे कदम किया है? देखेंगे, जैसी जरूरत होगी वैसा नकवी करेंगे। साहब, आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट के हक में प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट का स्वरूप क्या है? क्या कोई शुक्रिया बहुत, थैंक यू। तो मौलाना महमूद मदनी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात कह रहे हैं। और मौलाना महमूद मदनी ने साफ तौर पर कहा कि हम वक्फ बिल के लिए अपनी हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, सब्र करने के लिए तैयार हैं, हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। तो जमीयतुल उलमाए हिंद ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बताएं कि अभी तक हम देख रहे थे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, और अब जमीयतुल उलमाए हिंद ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मौलाना महमूद मदनी ने मीडिया से खिताब किया। मीडिया के कई सवालों के उन्होंने यहाँ पर जवाब दिए। उन्होंने कहा कि कभी बीजेपी वक्फ की हिमायत करती थी, पूरा मामला सियासत का है, जमीन कब्जा करने वालों के लिए सरकार पैदा कर रही है आसानियां। हमने आजादी के वक्त मुल्क के दुश्मनों से लड़ाई लड़ी, मुसलमानों से किए गए वादों को तोड़े जाने की कोशिश की जा रही है। मौलाना ने कहा कि मुल्क के मेमार ने जो वादा किया था उसे रौंदने की कोशिश है, इस हुकूमत को इंसानों से कोई मतलब नहीं। साथ ही मौलाना महमूद मदनी ने यह भी कहा कि ये बिल्कुल उसी तरह से है। उन्होंने यहाँ पर एक मुहावरे का जिक्र किया कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए, यानी जो भी कहा जा रहा है उसको सुना नहीं जा रहा, कान पे जू तक नहीं रेंग रही। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। का जो एक्ट था अमेंडमेंट होने से पहले, वो अगर रहता तो जो चाहते वक्फ बोर्ड वाले कर लेते हैं। हालांकि पहले भी जो वक्फ बोर्ड थे वो बाकायदा एक सिस्टम के तहत बनाए जाते थे, उसमें मुस्लिम सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता था, न पहले होता था न आज है। वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूट करने में, बनाए जाने में सोसाइटी का कोई रोल नहीं कभी रहा, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट बनाया करती थी वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती थी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल बन रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, स्टेट के वक्फ बोर्ड बन रहे हैं तो स्टेट की सरकारें बना रही हैं। मुसलमानों का कोई रोल नहीं होता था उसमें। हाँ, ये जरूर होता था कि, और अभी भी होगा, कि सरकारें अपनी मर्जी के मुसलमानों को एज वेल एज अदर्स को बना लेंगे। जैसे पहले होता था कि वो अपनी मर्जी के लोगों को बनाया करते थे। अब बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से सारे मुल्क में मीडिया के जरिए से ये फैला दिया गया कि ये तो ऐसा लगता है जैसे कहीं बाहर से, चाइना से आके लोग बैठे थे यहाँ और आकर के इन्होंने वक्फ बोर्ड बना रखे थे और कब्जे कर लिए। समझ लो, वही पार्टी जो आज ये कह रही है कि कब्जे करते थे, वही पार्टी 2009 में ये कहा करती थी कि इनकी जमीनों पर कब्जे हुए हैं और हम उनके छुड़वाने में रोल प्ले करेंगे। 2009 से आज तक में इतनी चेंजिंग आ गई कि 2009 तक जो कम्युनिटी मजलूम थी वक्त के मामले को लेकर, वही कम्युनिटी जालिम हो गई कि इन्होंने ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया और ये गिरफ्त कर लिया।
तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता, तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। न देश के लिए, न कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और न ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ, जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया। तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। हमने, हमारे पुरखों ने, बड़ों ने ये फैसला किया, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क में ही रहेंगे, और उसके खिलाफ, उसको लेकर लड़ाई लड़ी एक लंबी, अपनी कम्युनिटी के उन लोगों से जो थोड़े से थे संख्या में, और जिनके सपोर्ट में ये लोग खड़े थे उस वक्त भी, हमने उनसे लड़ाई लड़ी। और हमसे इस देश के फाउंडर्स ने, इस कंट्री के फाउंडर्स ने, आजाद भारत के कुछ कमिटमेंट्स किए थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेजोरिटेरियन अप्रोच के साथ उन कमिटमेंट्स को और इस मुल्क की बुनियाद रखने वाले लोगों को रोंदा जाने की कोशिश हो रही है। इस तकलीफ का इजहार, मालूम है मुझे कि मेरे ये शब्द, मेरे ये एहसास, मेरी कम्युनिटी की ये फीलिंग बहरे कानों से सुनी जाएगी, मुझे मालूम है। वो दिल तक नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक खास सोच बना ली गई है और उस सोच के तहत एक्शंस लिए जा रहे हैं। वो आदमियों से कोई मतलब नहीं है, इंसानों से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, हमारे यहाँ कहावत मशहूर है हिंदी की। तो सदा बसहरा साबित होगी, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है इस मुल्क के, हमारे इस देश के ऐसे नागरिक होने के वास्ते से, वजह से हमारी एक जिम्मेदारी आई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आई है कि हम गरीब कुचले ऐसे लोगों को जिन्हें साइडलाइन कर दिया गया, जिन्हें रोंदने की तैयारी कर ली गई और रोंदा जा रहा है, उनकी तरफ से दिल की तकलीफ का इजहार कर सकूं। तो बस सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो सवाल हैं उन सवालों को सुनता हूं मैं, तो मुझे समझ आता, सोचता हूं ये इन लोगों के पास से शर्म नाम की चीज खत्म हो गई, एकदम शेमलेस हो गए सवाल करने वालों के बारे में सोचता हूं। जिस तरह के सवाल आते हैं, तो बहरहाल मुझे फिर एक मर्तबा शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का इस बात के लिए। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं हो।
और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना। इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि ऐसे वाक़यात आइंदा ना हो। आप लोग कहाँ कब तक प्रोटेस्ट करेंगे, क्या है कुछ तय हुआ है कि कब तक प्रोटेस्ट करेंगे? मुझे कॉल आ गई है, जरूरी मुझे जाना है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से वो करने के लिए लगातार, चाहे वो प्रोटेस्ट की बात हो, चाहे काम किया था, नियाज अहमद फारूकी थे, सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के, साफ तौर पर कहना है कि आगे भी किसी तरीके की तशद्दुद जो भी कहीं करने वालों को कुचला जा रहा है और उनकी जुबान बंद की जा रही है सिर्फ काली पट्टी लगाने पर जो कुछ हो रहा है। ऐसे में सवाल अब सिर्फ वक्त का नहीं रह गया, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का सवाल पैदा हुआ। आपको मालूम है कि इमरजेंसी में क्या हुआ था? सबसे पहले हमारी जुबान पे पाबंदी लगाई गई थी। उससे बड़ा इस वक्त सवाल है कि किस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर दहशत फैलाई जा रही है। ऐसे में हमारे लोग जो रिएक्ट करेंगे तो ये जरूरी है कि हम उनकी सही रहनुमाई करें। तो इसको, इस मुल्क के जो अवाम है, इतनी बड़ी तादाद है, उनको आप लाठी और डंडे के जरिए दबा नहीं सकते। ये कभी नहीं हुआ है और ना आइंदा होगा। तो हम इसको अपना फर्ज समझते हैं कि हम सही लोगों की सही रहनुमाई करें। तो एहतजाज तो होगा चाहे हुकूमत कुछ भी करे, एक तो पहली बात यह है। लेकिन इस एहतजाज के करने का तरीका क्या होगा, ये भी हमें अपने लोगों को क्लियर होना चाहिए। कैसे भी हालात हों, कितनी भी गोली चले, कुछ भी हो, तशद्दुद का रास्ता हमारे लिए नहीं है। ये गांधी जी की तहरीक नहीं, वैसे इस्लाम इजाजत नहीं देता, इस्लाम इजाजत नहीं देता, कभी नहीं इजाजत देता। तो दोनों ही बातें हैं कि हम एहतजाज से हमको रोका नहीं जा सकता, और दूसरे ये कि हम एहतजाज में न तशद्दुद करेंगे न तशद्दुद होने देंगे। तो आज की जो ये मीटिंग हुई है, वो उसका बुनियादी जो है फोकस है वो इस बात पर है। दूसरे ये कि जो वक्फ के बोर्ड के सिलसिले में और वक्फ के कानून के सिलसिले में ये सरकार जो है अंधाधुंध आंखों में धूल झोंक रही है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बाकायदा आप देख रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब से लेकर के और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से लेकर के और RSS और दूसरी तंजीमों को लेकर के, थोड़ा सा आप लीगल बता दीजिए, थोड़ा सा पॉइंट से। तो वो उस गुमराही को एक चीज हम ये भी बताना चाहते हैं कि इसमें बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो अदालत में गई हैं और हम भी अदालत के अंदर पार्टी हैं, और हमारा फोकस इस बात पे है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल है, ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे दस्तूर के बुनियादी जो उसकी रूह है, उसकी जो वैल्यूज है, उसके उनका। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने बड़ा बयान दिया। मौलाना ने कहा कि बिना कमांडर के जंग न छोड़ें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लान पर ही काम करें। दुश्मन चाहते हैं कि हम गलती करें, पहले जो ताकतवर है उन्हें पहले गिरा दिया जाए ताकि कमजोर अपने आप गिर जाए। जो फौज कमांडर के बगैर लड़ती है वो बिखर जाती है, वो कामयाब नहीं होती। इसलिए जो कुछ करें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मसले को अपने हाथ में लिया है और तमाम मुस्लिम तंजीमें उसके शाना बशाना चल रही हैं, बल्कि उसका हिस्सा है। बोर्ड की तरफ से जो बात आए उस पर अमल कीजिए, अपने तौर पर कदम न बढ़ाइए। आप याद रखिए, आपके दुश्मन चाहते हैं कि आप मुश्तहिद हो। इस मौके पर अक्लमंदी यह है कि आप अपने आप को इश्तिहार से बचाएं। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों की तरफ से राजधानी रांची में धरना दिया जा रहा है। राजभवन के सामने ये धरना दिया जा रहा है। ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन की तरफ से धरने का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने वक्फ तरमीमी कानून वापस लेने की मांग उठाई। हमारी जो लड़ाई है असल में संविधान को बचाने की लड़ाई है, और वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है वो संविधान के जो कुछ अनुच्छेद है उनको वायलेशन करते हुए उन्होंने अमेंडमेंट किया है। इसलिए हमारी जो लड़ाई है वो बिल्कुल संविधान के खिलाफ, सरकार से लड़ाई नहीं है हमारी। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि आपने जो संशोधन किया है उसमें कुछ त्रुटियां हैं
उस त्रुटि को आप हटा लें। कमांडर भी है और कमांडिंग भी है, और कमांडर और कमांडिंग के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। भारत सरकार ने भारतीय मुसलमानों के बिना सुझाव लिए, बिना राय लिए उनके ऊपर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को थोप दिया है, जो भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, संविधान की समानता के अधिकार के खिलाफ है। हर व्यक्ति कमांडर है। जब उनके मूलभूत सुविधाओं पर हमला हो, उनके बुनियादी हुकूक को छीना जाए, तो हर व्यक्ति को यह हक हासिल है तो आइन के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर अपना प्रोटेस्ट जारी रखे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मुसलमानों का सबसे मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, और वहाँ से ये इजाजत मिली है कि हर तरीके अपने अपने तौर पे स्टैंड कर सकते हैं। दरअसल ये है कि ये लड़ाई आइन के हुकूमत के खिलाफ लड़ाई है। हुकूमत ने, इंडिया की हुकूमत ने जो वक्फ एक्ट बनाया है कानून, वो हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को मंजूर नहीं है। ये भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो इंस्ट्रक्शन है, गाइड है, उसी का एक हिस्सा है कि आप पीसफुली धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, रैली कर सकते हैं। इसलिए वो अलग नहीं है, हम लोग उसी के तहत काम कर रहे हैं। बिहार में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला और इसी पर जेडीयू बिफर गई। वहीं बीजेपी तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के दौरे इख्तिदार की याद दिलाती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट। ये एक्स पोस्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन तेजस्वी यादव का है, जिसमें वजीर आला नीतीश कुमार के एक हाथ में कुर्सी है, दूसरे हाथ में ट्रॉफी है, गर्दन में बीजेपी का माला है, पोस्ट में लिखा है बर्बादी के 20 साल। दूसरी तरफ पीएम मोदी को ताली बजाते दिखाया गया है। तेजस्वी यादव के इस पोस्ट पर अब सियासत शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार इस पोस्ट पर आग बबूला है। माननीय तेजस्वी यादव जी, सारी मर्यादा आप लांघ रहे हैं। आप तो ऐसे राजनीति में कैसे पुत्र पैदा लिए कि पिता आईसीयू में, हॉस्पिटल में शल्य चिकित्सा हुई है, अब बेटा राजनीति में ट्वीट कर रहा है। ये ट्विटर बबुआ बने हुए हैं। अरे नीतीश कुमार जी ने गठबंधन की राजनीति में सम्मान किया है। तो बीजेपी भी नसीहत दे रही है कि अगर तजजिया ही करना है तो अपने माँ बाप यानी लालू यादव, राबड़ी देवी के राज का करे। तेजस्वी यादव इतने काबिल नहीं हैं कि 20 साल में क्या हो उसकी एनालिसिस कर ले। अगर एनालिसिस करना है तो अपने माता पिता के काल में 15 साल में जो बिहार में हुआ, और जो उनके अपने सगे मामा ने इस बात का उल्लेख किया कि जो एक अन्य मार्ग था मुख्यमंत्री का जो आवास था, वहां से किडनैपिंग का उद्योग चलता था, कि कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। हालांकि बीजेपी जेडीयू के करारा वार के बावजूद आरजेडी अपने लीडर तेजस्वी यादव के पोस्ट को सही बता रही है। सब लोग जनता कह रही है तो जग जाहिर हो चुका है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को